my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. Today we are starting a new chapter of class 11th mathematics, and the name of the chapter is straight lines. Straight line is a part of coordinate geometry which you have already studied in class 10th and 9th also. तो 10th क्लास में जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था उसमें आपने डिस्टेंस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल या सेक्शन फॉर्मूला का यूज पढ़ा था. सो टुडे in this class we are about to start an entirely different topic from coordinate geometry, and the name of the topic is slope. Now what do you mean by slope? Slope is a word which we often use in our daily life also. जैसे हम बात करते हैं कि the surface is so slopey, that means उसमें कुछ tiltedness है. In this chapter we will talk about slope of lines only. ठीक है, तो स्लोप ऑफ अ लाइन मीन्स डिग्री ऑफ टिल्टेडनेस या स्लांटनेस ऑफ अ लाइन. एक लाइन कितनी स्लांट है या फिर कितनी टिल्टेड है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप ऑफ अ लाइन. सी, ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इफ द लाइन इज इंक्लाइनिंग देन इट हैज पॉजिटिव स्लोप, and on going from left to right, if the line is declining, then it has negative slope, right? So slope calculate कैसे करेंगे उसके लिए अब मैं आपको बताता हूं. There are three different ways of finding slope of a line depending upon the data that is provided to us. So one of the ways, if we know the line which the angle which the line makes with the positive direction of x-axis, then using that angle we can find the slope of this line. So slope is represented by m, and the formula is tangent of the angle between line and positive direction of x-axis. Now positive direction means right side. फॉर एग्जाम्पल अगर लाइन ऐसे भी कट कर रही है, इन दैट केस ऑल्सो ये एंगल होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में. ठीक है, तो राइट साइड पे बनने वाला जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन. देयर इज अनदर फॉर्मूला. if we have coordinate of 2 points that are lying on the line, then we can also find slope of the line. The formula is y2 minus y1 upon x2 minus x1, right? तो अगर आपको दो पॉइंट्स मालूम है जिनके कोऑर्डिनेट्स बताऊं, तो उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से भी आप लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते हैं. एंड द थर्ड वे, इफ वी नो द इक्वेशन ऑफ द लाइन, suppose equation of the line is in this form, ax plus by plus c equal to 0, तो ऐसे में भी हम स्लोप निकाल सकते हैं. द फॉर्मूला विल बी माइनस a by b, वेयर a इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज कोफिशिएंट ऑफ y. ये फॉर्मूला कैसे बना है ये अभी हम आगे जाके पता लगाएंगे. ठीक है, सो दीज थ्री आर द वेज टू फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन. नाउ वी नीड टू लर्न फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ स्लोप, like two lines are parallel. If two lines are parallel, then the condition is their slopes must be equal, right? So if slopes of two lines are equal to each other, that means the lines are parallel. Now next, two lines are perpendicular. If perpendicularity की condition, if two lines are perpendicular, then in that case the product of their slopes will be equal to -1. So this is the condition of parallel lines and this is the condition for perpendicular lines. The next, slope of x-axis, ये आप याद रखेंगे हमेशा 0 होती है. Why? Because x-axis जो है वो x-axis के साथ ही कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का, और फॉर्मूला होता है tan थीटा. ठीक है, तो tan 0 की वैल्यू 0 होगी. स्लोप ऑफ y एक्सिस विल बी नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी. Why? Because the angle between y axis and x axis is 90 डिग्री. दैट मीन्स थीटा जो है वो 90 है.
तो अगर मैं tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा स्लोप का, तो tan 90 बन जाएगा, एंड tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की स्लोप 0 है, तो दैट मींस एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी सबकी स्लोप 0 ले सकते हो आप, राइट, बिकॉज पैरेलल लाइंस में स्लोप्स इक्वल होती है। और ऐसे ही अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है जितनी भी हो, तो उन सबकी स्लोप क्या होगी, नॉट डिफाइन, राइट। चलिए next we will study angle between two lines. See, if slope of two lines is given to us, then the acute angle between them can be calculated using the formula. Let me represent it by the angle phi. Tangent of this angle between two lines, can be calculating using the formula m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, और इसे हम मॉडुलस में रखेंगे। why? बिकॉज हम एक्यूट एंगल फाइंड करने वाले हैं। अगर मैं मॉडुलस नहीं लगाता तो प्लस माइनस में आएगा, देयर विल बी टू वैल्यूज, एक ये वाला एंगल आ जाएगा और एक ये वाला एंगल आ जाएगा। तो खैर एक एंगल कोई भी पता लगा लो और उसे 180 में से माइनस कर दो तो दूसरा एंगल आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो इसलिए यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। नाउ कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी की कंडीशन आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है 10th क्लास में। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है तो ऐसे में हमें पता चल जाता है पॉइंट्स आर कोलिनियर, या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से भी आपने किया है, सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड। तो ऐसे में भी पॉइंट जो है कोलिनियर होते हैं। ये 10th क्लास की कंडीशन है। अब 11th में मैं स्लोप का कंसेप्ट हम क्योंकि यूज कर रहे हैं, तो उसकी हेल्प से हाउ कैन यू फाइंड वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। सी 3 पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर इफ, सी अगर 3 पॉइंट्स A की लाइन पे आ रहे हैं, सो इन दैट केस जो स्लोप AB की होगी वही स्लोप BC की होगी। सो दैट मीन्स स्लोप ऑफ AB विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। आप अगर चाहें तो इसे स्लोप ऑफ AC के इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ स्लोप जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू एक्सरसाइज 10.1। So question number 1 from exercise 10.1 is we need to plot these points on graph and we have to join these points so as to form a quadrilateral and then we need to find area of that quadrilateral. तो ये 10th क्लास में बेस्ड फॉर्मूला है। ये पूरा क्वेश्चन जो है 10th क्लास में बेस्ड है। सी मैं इनको रफली प्लॉट करूंगा। -4, 5 विल बी समवेयर हेयर, लेट इट बी A, let it be B, let it be C and let it be D. So 0,7 will be somewhere here. And then 5, -5, 5 minus 5 will be somewhere here. And last -4, 2, -4, 2 will be somewhere here. So if we join these points, we get our quadrilateral. Now, how to find the area of this quadrilateral? This thing we have already studied in class 10th कि quadrilateral का एरिया निकालना हो तो उसके लिए हमें किसी एक डायगोनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। Let us join BD. Then we have two triangles and one by one we can find area of both the triangles. Area of triangle का फॉर्मूला जो था वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हाफ then mod x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, right? तो this was the formula जो आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा है। अब इसी की हेल्प से मैं ये क्वेश्चन करने वाला हूं। तो सबसे पहले we will join BD और मैं फाइंड कर रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का यूज करेंगे। ये x1 y1 ले लेता हूं, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो फॉर्मूला है हाफ मॉड x1 है -4 और साथ में y2 minus y3, y2 is 7 minus 2, y2 minus y3
एंड देन वी हैव x2 विच इज 0. अब 0 के साथ कुछ भी लगाओ तो मल्टीप्लाई करके 0 ही बन जाना है, इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं है. और आगे x3 इज एक्चुअली -4 और उसके साथ है y1 माइनस y2 यानी कि 5 माइनस 7. ठीक है, चलो ये भी लिख देते हैं. तो x2 के साथ था y3 माइनस y1 तो ये 2 माइनस 5 आएगा. तो चलिए क्या बन जाता है देख लेते हैं. ये बनेगा 5 इंटू -4 इज -20. Then this will be 0 and this will be -2 -4 which will be 8. ठीक है, तो ये बन जाएगा -12 बट मॉडुलस से बाहर आके +12 हो जाएगा. तो +12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आ गया. राइट, चलिए अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ BCD. अब एरिया ऑफ BCD के लिए ये बन जाएगा x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3. तो पहले तो x1 विच इज 0 के साथ y2 माइनस y3 तो -5 -2. फिर आएगा x2 विच इज 5 और इसके साथ आएगा y3 माइनस y1 तो 2 - 7. और लास्टली देयर इज x3 इज -4 एंड उसके साथ आ जाएगा y1 माइनस y1 7 माइनस y2 तो माइनस ये प्लस बन जाएगा. तो ये आ गया. तो ये टर्म 0 हो गई. ये बनेगा -5 इंटू 5 विच इज -25 एंड देन दिस विल बी 12 इंटू -4 दैट विल बी -48. ठीक है, इनको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये बनता है -73 और 73 पॉजिटिव हो जाएगा मॉड की वजह से और उससे जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वैल्यू विल बी 36.5 स्क्वायर यूनिट्स. सो नाउ वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. तो उसके लिए मैं ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया ऐड कर दूंगा, एरिया ऑफ ABD एज वेल एज एरिया ऑफ BCD. तो ABD का एरिया हमें ऑलरेडी मालूम है 6 है और BCD का 36.5 है. तो आंसर वुड बी 42.5 स्क्वायर यूनिट्स. तो ये इसका आंसर आ गया. टोटली 10th क्लास पे बेस्ड ये क्वेश्चन है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज ऑन y एक्सिस सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन. फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल. सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका बेस y एक्सिस पे है और वो इस तरह से है कि जो बेस का मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे है. तो यानी कि बेस यहां से लेके समवेयर यहां तक होगा ताकि मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे आ जाए. ठीक है, लेट इट बी A, लेट इट बी B and the third vertex must be here. ठीक है, side of the triangle is 2a. तो सारी की सारी साइड्स 2a हैं तो ये भी 2a ही होगा. अब अगर ये पूरा 2a है तो दैट मींस इतना सा जो पोर्शन है दैट विल बी इक्वल टू a. हाफ होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है. सो लेट इट बी O. नाउ OA की वैल्यू जो है वो a है एंड AC जो है वो 2a है. अब अगर मुझे वर्टिसेस फाइंड करने हैं ट्राइंगल के तो A के वर्टिसेस तो साफ साफ दिख ही रहे हैं O, A है और B के वर्टिसेस जो है O, -A है. बस C के वर्टिसेस अभी मुझे नहीं मालूम है. तो अगर C के वर्टिसेस फाइंड करने हैं तो उसके लिए मुझे OC फाइंड करना पड़ेगा एंड OC हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के. तो सिंस O इज मिड पॉइंट ऑफ AB सो दैट मीन्स OA और OB दोनों की वैल्यू A हो जाएगी. वाई A क्योंकि पूरी साइड जो है वो 2a है और 2a का हाफ करने पे A आ जाएगा. नाउ इन ट्राइंगल AOC में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूं तो OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर. नाउ OA इज A तो A का स्क्वायर कर देंगे. OC वी नीड टू फाइंड आउट एंड AC जो है वो 2a है तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी 4a स्क्वायर. नाउ ये a स्क्वायर उधर जाके माइनस होगा तो OC स्क्वायर की वैल्यू 3a स्क्वायर आएगी. अब यहां से OC निकालेंगे तो स्क्वायर जब रूट बनता है तो प्लस माइनस में आता है वैल्यू. तो ये आ गया. अब प्लस माइनस आने का मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है एक कोऑर्डिनेट इस साइड भी हो सकता है. मतलब ये C जरूरी नहीं है इधर ही हो, इस साइड भी हो सकता है. सो देयरफॉर द 3 वर्टिसेस आर A के वर्टिसेस है 0, A, B के वर्टिसेस है 0, -A
एंड सी के वर्टिसेस, अगर ये सी, ये ओसी की लेंथ √3a है, तो ये √3a, 0 होगा, बट ये इस साइड भी हो सकता है, तो इसलिए मैं प्लस माइनस लगाऊंगा, यानी प्लस या माइनस में से कोई भी ले सकते हो आप थर्ड वर्टेक्स की तरह, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। तो अभी ये पहले 2-4 क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के, वो 10th क्लास की लॉजिक पे बेस्ड है। इसमें भी जो कुछ भी था, कुछ भी ऐसा नहीं है जो 11th क्लास पे बेस्ड हो। जैसे स्लोप अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है, तो अभी तक स्लोप का यूज स्टार्ट नहीं हुआ, तो 4th क्वेश्चन के बाद स्टार्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नाउ वी आर ऑन आवर थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q when PQ is parallel to x axis when PQ is parallel to y axis। तो दो पार्ट्स हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। अगर PQ पैरेलल टू x एक्सिस है तो ये होगा P और ये होगा Q। P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो P और Q में डिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, विच इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब बेटा जब भी कोई पॉइंट, जब भी एक लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रही होती है, तो उनका जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम रहता है, राइट? क्योंकि उनका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस विल रिमेन सेम। इसका x कोऑर्डिनेट तो डिफरेंट होगा, मगर y कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट्स का सेम ही होगा। तो यानी कि फर्स्ट पार्ट में y1 विल बी इक्वल टू y2, वाई? बिकॉज द लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जब भी कोई लाइन सेगमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, y1 विल बी इक्वल टू y2। अब अगर y1 और y2 इक्वल है तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है? अब ये स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, अब स्क्वायर से बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा, तो यही होगा हमारा डिस्टेंस। बट वी नो दैट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, एंड देयर इज नो गारंटी दैट कि x2 बड़ा ही होगा x1 से, क्योंकि x1 x2 में से कौन बड़ा है कोई नहीं जानता। ये फिगर तो मैंने बनाई है अपने अकॉर्डिंग। तो इसलिए टू कीप डिस्टेंस पॉजिटिव हमें यहाँ पे एक मॉडुलस भी लगाना चाहिए। मॉडुलस लगा देने से ये गारंटी हो जाएगी कि इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, डिस्टेंस हम कभी नेगेटिव नहीं लेते। तो चलिए मूविंग ऑन टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है कि PQ जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। अब आप खुद ही डिसाइड कर लो, अगर ये P है और ये Q है तो इस बार इनका कौन सा कोऑर्डिनेट सेम होगा, x वाला या y वाला? देखिए इस बार दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट दोनों का डिफरेंट आएगा, ठीक है ना? x कोऑर्डिनेट विल बी सेम। तो सेकंड पार्ट के लिए x1 विल बी इक्वल टू x2। अब PQ क्या होता है वो तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला ही हुआ है हमने, और डिस्टेंस फॉर्मूला हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो जब भी x1 इक्वल टू x2 होगा तो ये वाली वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। तो 0 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये टर्म स्क्वायर रूट से बाहर आएगी तो y2 माइनस y1। अगेन वी डू नॉट नो कि ये वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, तो इसलिए हम यहाँ पे भी मॉडुलस लगा देंगे, तो इतने यूनिट्स जो आएगा वो लेंथ ऑफ PQ आ जाएगी। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ये बस छोटा सा लॉजिक आपको समझाना था इस क्वेश्चन की हेल्प से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो हियर वी आर विद क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7, 6 एंड 3, 4। तो अगर मैं फिगर बनाऊं इसकी, वैसे फिगर बनाने की जरूरत तो नहीं है, तो 7,6 मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे आएगा, और 3,4 विल बी समवेयर हियर, ठीक है? तो अब इस पॉइंट को मैं A मान लूं और इसको B मान लूं, तो हमें एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप 10th में कर चुके हो ऑलरेडी। एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, मे बी वैल्यूज डिफरेंट होंगी बट ऐसा ही क्वेश्चन आपने किया हुआ है। सो लेट P, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो x, 0 होंगे इसके कोऑर्डिनेट, बी अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from, पहले पॉइंट को मैं A मान लेता हूं 7,6 एंड दूसरे पॉइंट को B मान लेते हैं 3,4। तो अब हमें ये मालूम है कि PA इक्वल टू PB है, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है ये जो पॉइंट P है, दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं P और A में। P और A में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, then it will be y2 minus y1 whole square, y2 minus y1 whole square, then मैंने pb की वैल्यू लिख दी है, तो चलो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। अब इनफैक्ट pb लेना था तो अब मैं pa ले लेता हूं। तो x माइनस 7
x माइनस 7 होल स्क्वायर और फिर y 0 माइनस 6 होल स्क्वायर, ये बन गया। अब इसके बाद अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो दोनों के स्क्वायर रूट कट जाएंगे। अब मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, देन माइनस 4 का स्क्वायर विल बी 16 और यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर विल बी 36। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डायरेक्ट कट जाएगा, ये 14x इधर आके प्लस होगा इसमें, तो 14 माइनस 6 करने पे 8x आएगा और ये है 25 उधर ले जाऊंगा और ये मेरे पास है 49 36 और 25 उधर जाके माइनस हो गया। अब इनको अगर मैं माइनस करता हूँ 1160 आ जाएगा ये, तो यहां से 8x की वैल्यू क्या आ रही है 60, तो यानी कि x की वैल्यू अगर मैं नीचे डिवाइड में लेके जाऊंगा 4 के टेबल से काटूंगा तो 15.2 आ जाएगी, 15.2 यानी 7.5 के आसपास। सो देयरफॉर p 15/2, 0 is the required point. That's it. तो ये पहले 4 क्वेश्चन हो गए हमारे एक्सरसाइज के और इसमें कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं था जो आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ 10th क्लास में। अब इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे जो हमने आज की क्लास में पहले ही कंसेप्ट सीखे हैं, स्लोप पे बेस्ड। तो स्लोप पे बेस्ड क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 5, find the slope of a line passing through origin and midpoints of the line segment joining the point P 0, -4 and Q 8, 0। चलिए हम इसकी एक फिगर बना लेते हैं, रफ फिगर। ऑल्दो फिगर बनाना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, तो आप अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बना सकते हो अगर आप चाहो तो पहले मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करता हूं। 0, -4 यहां पे कहीं पे आएगा और 8, 0 कुछ यहां पे आ जाएगा। इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट हो गई है। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है और इसके अलावा P और Q के मिड पॉइंट से पास हो रही है। इन दोनों का मिड पॉइंट विल बी समवेयर हियर, तो ये अगर O है ये R है, तो हमें ये वाली लाइन की स्लोप निकालनी है जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ठीक है। तो बेटा स्लोप निकालनी हो तो उसके मैंने 3 फॉर्मूले आपको बताए हैं इसी क्लास की स्टार्टिंग में, आप दोबारा देख सकते हो। एक होता है जब अगर हमें लाइन और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल पता हो। क्या हमें एंगल के बारे में कुछ भी मालूम है? नहीं। दूसरा होता है अगर हमें लाइन पे 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता चल जाए। जिस लाइन की स्लोप निकालनी है डॉटेड लाइन, उस पे 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है। देखो एक ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो पता ही है, सभी को मालूम है 0, 0 होते हैं। क्या आर के कोऑर्डिनेट निकाले जा सकते हैं? यस। हाउ? बिकॉज आर इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो चलिए पहले आर के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। सिंस आर इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, सो दिस इंप्लाइज आर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 + x2/2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, 10th क्लास में हमने पढ़ा है, y1 + y2/2। तो इससे मुझे आर के कोऑर्डिनेट पता चल गए 4, -2। सो नाउ वी नो कि 4, -2 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ ओ आर, स्लोप का फॉर्मूला अगर हमें 2 पॉइंट्स पता हो तो फॉर्मूला था y2 - y1/x2 - x1। तो अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है तो y2 - y1/x2 - x1, तो दैट विल बी -2/4 यानी -½ स्लोप नेगेटिव में आई है। मैंने आपको पहले भी बताया था स्लोप नेगेटिव आने का मतलब होता है कि लाइन लेफ्ट टू राइट जाते हुए डिक्लाइन हो रही है। तो आप देख भी सकते हो ये लेफ्ट टू राइट जाते हुए नीचे की तरफ जा रही है, तो इसलिए इसकी स्लोप नेगेटिव आनी चाहिए ही थी और वही हमारी आई है, ठीक है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। देखिए स्लोप का कंसेप्ट आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, जब भी कोई कंसेप्ट फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो है वो प्रीटी मच इजियर साइड पे ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें शो करने की ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, बट इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है। देखो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से कैसे प्रूव करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपने ऑलरेडी 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन कर लिया हुआ है, जब हम तीनों साइड की लेंथ निकाल लेते थे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और कोई 2 साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाता था, तो पाइथागोरस थ्योरम या उसके कन्वर्स की हेल्प से पता चल जाता था वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो उसका यूज नहीं करना, तो फिर कैसे करें? इस बार हम स्लोप का यूज करेंगे, ठीक है। किस तरह से? मैं मान लेता हूं कि ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है। अब मैं
जो ट्राइंगल में 3 साइड्स बनेंगी उन तीनों साइड की स्लोप निकाल लेता हूं। पहले मैं निकाल लूंगा स्लोप ऑफ ए बी। तो 2 पॉइंट्स पता है, तो स्लोप का फॉर्मूला अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी लगाया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 1 अपॉन -1 यानी -1 आता है। फिर मैं स्लोप ऑफ BC निकाल लूंगा, BC, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये बनेगा -6 बाय -4 विच विल बी इक्वल टू 6/4 यानी 3/2 आ जाएगा। ठीक है, लास्टली मैं स्लोप ऑफ AC भी निकाल लूंगा, तीसरी लाइन की स्लोप, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आ रहा है -5/5 यानी कि 1। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है, यानी कि 2 साइड्स ऐसी होती है जो आपस में परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अभी हमने स्लोप की हेल्प से परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन पढ़ी है आज की ही क्लास में स्टार्टिंग में। ठीक है, क्या कंडीशन थी? 2 लाइंस परपेंडिकुलर तभी होती है जब उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होता है? -1, राइट, -1। तो क्या आपको यहां पे कोई 2 स्लोप ऐसी लग रही है इन तीनों में से जिनका प्रोडक्ट करने पे -1 आएगा? बिल्कुल, ये रही। तो सिंस स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू -1 आ रहा है, तो इससे क्लियर हो गया कि AB परपेंडिकुलर टू AC है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल। और वो राइट ट्राइंगल किस पे होगा? अगर बेटा AB इक्वल टू AC, सॉरी परपेंडिकुलर टू AC है, तो राइट एंगल A पे ही होगा ना। तो एट A, या हालांकि ये पूछा नहीं है आपसे कि राइट एंगल कौन से पॉइंट पे है, बट आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन, वो डिस्टेंस फॉर्मूला से कम कैलकुलेशन है इसमें, ये अगर आप स्लोप का कंसेप्ट यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हियर वी आर विद क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन making angle of 30 degree with positive direction of y-axis measured anti-clockwise। तो इस बार स्लोप निकालनी है और कुछ एंगल से रिलेटेड दिया हुआ है। तो एंगल से रिलेटेड जब भी हो और हमें स्लोप निकालनी हो तो फॉर्मूला यूज होता है tan थीटा। ठीक है ना, वेयर थीटा इज व्हाट, ये पता होना बहुत जरूरी है। कोई भी एंगल थीटा नहीं होता है, थीटा सिर्फ वही एंगल होता है जो लाइन और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच में बनता है। बट यहां पे जो एंगल दिया है ये किसका एंगल है? लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ है। यानी कि अगर मैं इसकी एक रफ फिगर बनाऊं तो वाई एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है। वाई एक्सिस के साथ 2 तरह से एंगल बन सकते हैं, ऐसे भी बनाया जा सकता है और ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो एक किस तरह से बन रहा है उन्होंने बताया, एंटी क्लॉकवाइज, यानी लाइन जरूर ऐसे जा रही है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो दैट मीन्स फिगर विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसी फिगर हम बना देंगे इसकी। तो ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री दिया हुआ है। बट क्या इस एंगल की हेल्प से आप डायरेक्ट स्लोप निकाल सकते हो? नो। स्लोप निकालने के लिए वी नीड एंगल ऑफ द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनने वाला जो एंगल है वो ये है बेटा, ये एंगल चाहिए। अगर मुझे ये एंगल पता चल गया तो मैं आसानी से इसकी स्लोप निकाल पाऊंगा। अब वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो बेटा ये अगर मैं इस ट्राइंगल को ABC मान लेता हूं तो एंगल BAC जो है ये हो जाएगा 30 डिग्री का। वाई? बिकॉज दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, सो नाउ थीटा जो है वो इसके और इसके सम के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल BAC प्लस 90 डिग्री। वाई? ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखी है। तो थीटा विल बी इक्वल टू दिस एंगल प्लस 90। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस 90 यानी 120। नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ थीटा। बेटा ये डिक्लाइनिंग लाइन है, देखो लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियसली इसकी स्लोप नेगेटिव आएगी ना। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव आती है या नहीं। सो नाउ वी नो कि m का फॉर्मूला होता है tan थीटा एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज 120। इसे सॉल्व करने के लिए मैं 180 माइनस 60 करके लिखूंगा इसे। नो 180 माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में tan हो जाता है नेगेटिव, तो tan नेगेटिव होगा और फंक्शन चेंज नहीं होगा। ये आपने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। तो 180 है इसलिए फंक्शन चेंज नहीं हुआ, तो इसकी स्लोप आ गई -√3।
ठीक है, नेगेटिव आ गई और नेगेटिव ही आनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन अगर एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज होता तो आप कैसे करते? तो फिगर इसकी कुछ ऐसे बनती, ये वाला एंगल हो जाता 30। अब अगर ये 30 होता, मुझे तो सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए ना, ये वाला एंगल थीटा होता, इसकी वैल्यू कैसे आती? ये 30 बन जाता अंदर वाला, ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इस केस में थीटा जो है वो 60 आ जाता। इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं पड़नी थी, फिर सीधा थीटा 60 आता और फिर tan 60 करेंगे तो स्लोप आ जाएगी विच विल बी इक्वल टू पॉजिटिव √3। पॉजिटिव ही आएगी, लेफ्ट टू राइट ही ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे वाले इक्वेशन में। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया कि ये जो 3 पॉइंट्स है ये कोलिनियर है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, लेट दीज पॉइंट्स बी A, B एंड C, या पहले एज्यूम कर लोगे। अब हमें दे रखा है कि A, B, C आर कोलिनियर। कोलिनियरिटी की जो कंडीशन थी वो मैंने आपको बताई थी इसी क्लास की स्टार्टिंग में ही, होती है कि स्लोप ऑफ AB विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। बड़ा इस क्वेश्चन में वैसे कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं थी कि स्लोप की हेल्प से निकालना है। आप चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज भी कर सकते हो और अगर आप चाहो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज भी कर सकते हो। बट लेट मी टेल यू, स्लोप वाला तरीका सबसे छोटा होता है, सबसे आसान भी होता है। तो हमने स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC लेके करेंगे। पहले AB की स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सेम वे में BC की y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आ जाएगा। ऊपर बनेगा 2, नीचे आ जाएगा 2 माइनस x, यहां पे ऊपर आएगा 4 और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, ये आप कटिंग कर सकते हो, वैसे ये भी कट जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ये क्या बना, 1 अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ, 1 को उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू 1 आ गई। बस, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें शो करना है कि ये जो 4 वर्टिसेस है दे आर फॉर्मिंग अ पैरेललोग्राम। अब अगेन यहाँ पे बोला है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना, और हम यूज भी नहीं करना चाहते भी। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत लंबा तरीका होता है, स्लोप वाला कंसेप्ट सबसे आसान होता है। आइए इसको स्लोप की हेल्प से प्रूव करते हैं। लेट द पॉइंट्स बी A, B, C एंड D। अब कैसे प्रूव करें कि ये पैरेललोग्राम बन रहा है? तो मैं एक काम करूंगा, 4 साइड होती है पैरेललोग्राम की, चारों साइड्स की स्लोप निकाल लेता हूं। सबसे पहले स्लोप ऑफ AB, MAB यानी स्लोप ऑफ AB, तो y2 माइनस y1, माइनस और माइनस एक और आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, अपॉन x2 माइनस x1, लाइक दिस। सो दिस विल बी 1 अपॉन 6। ठीक है, नेक्स्ट मैं स्लोप ऑफ BC निकाल लूंगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो दैट विल बी इक्वल टू -3। अब मैं स्लोप ऑफ CD निकाल लेता हूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आप देखेंगे ये आएगा -1 बाय -6 यानी 1/6। फिर मैं स्लोप ऑफ AD भी निकाल लेता हूं, AD, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लाइक दिस। ये ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा -1, तो यानी -3 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों की स्लोप सेम है और इन दोनों की स्लोप भी सेम है। ठीक है, स्लोप सेम होना ये कंडीशन थी किसकी? क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप हमेशा इक्वल होती है। तो सिंस स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ CD है एंड स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD है, इससे पता चलता है कि AB पैरेलल टू CD है और BC पैरेलल टू AD है। यानी कि ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल है। AB और CD पैरेलल है और BC और AD भी पैरेलल है। तो ऑपोजिट साइड पैरेलल हो तो ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं? ऐसी फिगर को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। सो दिस इंप्लाइज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो बताओ इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला जितनी मेहनत लगी क्या? नहीं, उसमें चारों साइड निकालनी पड़ती है अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से करते तो। ठीक है, फिर फर्दर अगर हमें रेक्टेंगल शो करना होता तो उसमें फिर डायगोनल भी फाइंड करने पड़ते हैं। यहां पे तो अगर मुझे रेक्टेंगल शो करना है तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 आ जाना चाहिए। यहां पे तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल नहीं है, ये सिर्फ पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, तो आप रेक्टेंगल भी शो कर सकते हो इसी तरीके से।
चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 -1 एंड 4 -2। अगर मैं एक रफ फिगर बनाऊं जो कि इतनी जरूरी नहीं है, 3, -1 विल बी समवेयर हेयर एंड 4, -2 विल बी फर्दर हेयर। तो ये पॉइंट ए मान लेते हैं और ये पॉइंट बी मान लेते हैं, और इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही होगी, ये वाला एंगल पूछा गया है। ठीक है, तो क्या मैं इस लाइन की स्लोप निकाल सकता हूं? डेफिनेटली, ये ए बी की हेल्प से स्लोप ऑफ ए बी मैं निकाल सकता हूं y2 - y1। अच्छा, मैंने ए और बी एज्यूम किए, वो पहले आपको लिखना पड़ेगा। लेट ए एंड बी आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स बी द गिवन पॉइंट्स अपॉन y2 - y1। तो ये बन रहा है, तो इससे स्लोप आ रही है -1। तो नेगेटिव ही आनी चाहिए थी, डिक्लाइनिंग लाइन है ना, तो नेगेटिव आनी चाहिए थी। तो इसकी स्लोप -1 आ गई। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे? बेटा स्लोप का एक और फॉर्मूला भी होता है जो एंगल की फॉर्म में होता है, tan थीटा, और स्लोप किसके इक्वल है? -1 के इक्वल। अब इसकी हेल्प से मैं थीटा निकाल सकता हूं। कैसे? ये अब आपको आगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। tan के टेबल में 1 कब आता है? 45 पे आता है, या π/4 भी आप लिख सकते हो, 45 पे आता है। अब tan नेगेटिव है, फर्स्ट में तो होता नहीं है, सेकंड में नेगेटिव होता है। तो ठीक है, सेकंड में भी होता है, फोर्थ में भी होता है, बट पहले सेकंड आ रहा है, मैं उसी का एंगल लूंगा। वैसे भी ये जो एंगल होगा ये 180 से छोटा ही होगा, ये 180 से बड़ा नहीं ले सकते हम एंगल। ठीक है ना, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का केस तो लेना ही नहीं है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का केस ले रहा हूं, इसे मैं 180 माइनस थीटा लिख रहा हूं, क्योंकि tan नेगेटिव आया हुआ था और सेकंड में tan नेगेटिव होता है। तो यहां से थीटा की वैल्यू, अगर मैं tan से tan कट करता हूं, तो थीटा की वैल्यू 135 आती है। क्या आपको ये एंगल लग रहा है कुछ 135 जैसा? कुछ कुछ लग ही रहा है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सो क्वेश्चन नंबर 11, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ अनदर लाइन if tangent of the angle between them is 1/3, find the slopes of both lines। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक लाइन की स्लोप दूसरे लाइन से डबल है, ठीक है, और उन दोनों लाइंस के बीच के एंगल का टेंजेंट 1/3 है। टेंजेंट का मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाला tan। ठीक है, इसकी लैंग्वेज आपको समझनी होगी। तो जैसे दो लाइंस हैं, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, लेट दैट एंगल बी फाई। तो इस फाई का जो टेंजेंट है, यानी tan फाई, उसकी वैल्यू 1/3 है। तो क्या करेंगे हम? लेट स्लोप्स ऑफ टू लाइंस बी x एंड 2x। तो एक लाइन की स्लोप x और एक की 2x मान लेता हूं, क्योंकि डबल है ना एक लाइन की दूसरे लाइन से। तो ये एक की x होगी, एक की 2x हो गई। अब we know that tan phi, यानी कि एंगल बिटवीन टू लाइंस का एक फॉर्मूला होता है, विच इज m2 - m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये मॉडुलस में। ठीक है ना। अब टेंजेंट ऑफ द एंगल, ये वही बात आ गई ना, दोनों लाइंस के बीच के एंगल का टेंजेंट किसके इक्वल है? 1/3, यानी ये पूरी वैल्यू 1/3 के इक्वल है। अब मैं यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू डालता हूं, ये m1 मान लेते हैं, ये m2 मान लेते हैं। ठीक है, तो m2 - m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब मॉडुलस के अंदर जब भी वेरिएबल आता है तो हमें मॉडुलस हटाना पड़ता है, क्योंकि मॉडुलस के अंदर अगर कोई कांस्टेंट आए तो हम सॉल्व कर सकते हैं, वो बन जाएगा 3। अगर -5 आए तो वो बन जाएगा 5। तो मॉडुलस के अंदर अगर कोई डेफिनेट टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म होगी, तो हम मॉडुलस सॉल्व करते हैं। मगर अगर मॉडुलस के अंदर कोई वेरिएबल वाली टर्म हो तो हम मॉडुलस सॉल्व नहीं करते, हम मॉडुलस को हटा देते हैं। तो अगर मैं मॉडुलस हटाऊंगा तो ऐसे में बेटा दो केसेस बन जाएंगे, प्लस माइनस, या ये पॉजिटिव भी हो सकती है वैल्यू या नेगेटिव भी। आप प्लस माइनस यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, किसी भी एक साइड लगा लो, दोनों साइड लगाने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो अगर दोनों साइड लगा भी लोगे, फाइनल आंसर सेम ही बनने वाला है। ठीक है, 4 केसेस बनाने पड़ जाएंगे अगर आप दोनों तरफ प्लस माइनस लगाएंगे। 4 में से 2 केसेस बिल्कुल सेम बन जाएंगे। अभी भी 2 केस ही बनने वाले हैं, बट 4 बनने से हमने रोक लिए, तो इसलिए दोनों साइड प्लस माइनस नहीं लगाना। तो अब एक केस है जिसमें मैं 1/3 ले लूंगा यहां पे, और जो दूसरा केस है उसमें -1/3 ले लूंगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई
1 प्लस 2x² इज इक्वल टू 3x, इधर लेके आएंगे तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अगर हमें फैक्टर बनाने हो तो क्या वो पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है। इसके फैक्टर बन जाएंगे -2 और -1, तो एक आ जाएगा 2x - 1 और एक आ जाएगा x - 1। तो यहां से x की वैल्यू 1/2 आएगी और यहां से x की वैल्यू 1 आएगी। x हमने किसको माना था? पहली लाइन की स्लोप, तो देयरफॉर पहली लाइन की स्लोप 1/2 है। अगर पहली की 1/2 है तो दूसरी की तो इसी की डबल थी ना, तो 1/2 का डबल 1 होता है। तो ये बेटा एक सेट ऑफ आंसर्स आ गया। ठीक है, इसके और भी आंसर आने वाले हैं, आप देख ही रहे हो यहाँ पे। अगर फर्स्ट लाइन की स्लोप को 1 ले लिया जाए तो फिर जो सेकेंड लाइन की स्लोप है वो इसी की डबल यानी 2 हो जाएगी। तो ये सेकेंड सेट है। तो 2 सेट ऑफ आंसर हमारे पास आ चुके हैं ऑलरेडी। अब बाकी के और भी 2 आंसर्स हैं वो जो दूसरे यहाँ पे केस से निकलेंगे। ठीक है, अब मैं इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो आ जाएगा -1 - 2x² इज इक्वल टू 3x। सबको अगर मैं उधर ले जाता हूं तो ये बन जाएंगे। अब इसके फैक्टर बनेंगे बिल्कुल सेम यही फैक्टर बनेंगे, बट ये नेगेटिव में थे, वहां पे पॉजिटिव में बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे भी एक आ जाएगा 2x + 1 और एक आ जाएगा x + 1। तो x की वैल्यू -½ एंड x की वैल्यू -1। तो यहां से मुझे पता चला कि पहली लाइन की स्लोप -½ है, तो फिर सेकेंड लाइन की स्लोप इसकी डबल यानी -1 हो जाएगी। ये तीसरा सेट ऑफ आंसर है। और यहां से पहली लाइन की स्लोप -1 आएगी तो सेकेंड लाइन की स्लोप जो है वो इसकी डबल यानी -2 आ जाएगी। तो यानी इस क्वेश्चन के 4 डिफरेंट आंसर्स पॉसिबल है। या तो दोनों लाइंस की स्लोप ½ और 1 है, या फिर 1 और 2 है, या -½ और -1 है, या फिर -1 और -2 है। तो 4 डिफरेंट सेट ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12, अ लाइन पासिस थ्रू x1, y1 and h, k. If slope of the line is m, then show that k minus y1 is equal to m into h minus x1. काफी टफ क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है ये एक्चुअल में है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। उन्होंने बोला एक लाइन है, पता नहीं इंक्लाइनिंग है या डिक्लाइनिंग है, उसका कुछ नहीं मालूम है, तो मैंने ऐसे ही बना लिया रफ फिगर। तो 2 पॉइंट्स मालूम है x1, y1 और h, k, ये मालूम है। अगर मुझे इस लाइन की स्लोप निकालनी हो तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यही होगा जी। ठीक, अब नाउ जो स्लोप है वो हमें m के इक्वल दे रखी है। स्लोप ऑफ द लाइन इज m, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो स्लोप इसके इक्वल फॉर्मूला से आ रही है और m के इक्वल दे रखी है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब k - y1 अपॉन h - x1 इज इक्वल टू m हो जाएगा। दोनों ही तो स्लोप है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्या आ रहा है? h - x1 कुछ देखा देखा लग रहा है, यही है ना? तो अब आप खुद ही डिसाइड कर लो कितना मुश्किल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये हमारी साइकोलॉजी होती है जब हमें क्वेश्चन में नंबर्स ना दिखाई दें, जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, रियल नंबर्स, वो ना दिखाई दें और उसकी जगह आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स दिखाई दें, ऐसे a b c d h k वगैरह, तो हमें क्वेश्चन डिफिकल्ट लगने लग जाता है। तो वो कई क्वेश्चन डिफिकल्ट हो भी सकते हैं, मैं ये नहीं कहता, बट ज्यादातर क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही होने होते हैं। ठीक है, तो आपको अपने माइंड को वहां पे कंट्रोल करना है, उसे नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही देखने की कोशिश करनी है। आप इमेजिन करने की कोशिश किया करो कि अगर उनकी जगह कोई नंबर दिए होते तो आप ये क्वेश्चन किस तरह से ट्राई करते हैं, बिगिन करते हैं, तो उससे आपका सोल्यूशन निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 लीजिए, एक और क्वेश्चन आ गया आर्बिट्ररी कांस्टेंट से भरा हुआ, h, k, a, b और कुछ प्रूव भी करना है। तो इसे नॉर्मल क्वेश्चन की तरह समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बोला 3 पॉइंट्स हैं, लेट दोज पॉइंट्स बी a, b एंड c, राइट? दीज 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन। लाई ऑन अ लाइन का मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है, एक ही लाइन पे आ रहे हैं, जैसे ये a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है। तो a के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं h 0 है और b के a b है और c के 0, k है। तो जब भी 3 पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं तो उसके बारे में हम क्या जानते हैं? हमने कंडीशन पढ़ी है इसी क्लास में कि व्हेनेवर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड इन दैट केस स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ AC तीनों इक्वल होंगे।
तो आप कोई भी दो को इक्वल लेके सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंस ए बी सी आर कोलिनियर, देखिए इन्हें ए बी सी मानने से पहले आपको एक लाइन डिफाइन की करनी पड़ेगी, मैंने तो यहीं पे क्वेश्चन में लिख दिया है, आप ऐसा नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए H0, बी ए बी एंड सी 0। तो अगर एबीसी कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी। आप चाहो तो एसी भी ले सकते हो बीसी की जगह, या फिर यहां पे भी एसी ले सकते हो, तो आपकी मर्जी है, टोटली योर कॉल। तो ए बी की स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये बनेगा b माइनस 0 अपॉन a माइनस h। और ऐसे बीसी की स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये बन गया जी। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा पहले b अपॉन a माइनस h इज इक्वल टू k माइनस बी अपॉन माइनस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है देखते हैं, ये बनेगा माइनस ए बी, और सामने पहले a को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए के माइनस ए बी आएगा, ए के माइनस ए बी, फिर माइनस एच को दोनों से करेंगे तो माइनस एच के प्लस एच बी, माइनस एच के प्लस एच बी, ये बन गया जी। अब देखो कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, यस ए बी से ए बी कैंसिल ऑफ हो रहा है, चलो ए बी से ए बी कट गया। अब आपके पास क्या आया हुआ है, आपके पास है ए के माइनस एच के प्लस एच बी इक्वल टू 0, ये आ चुका है। अब इसके बाद कुछ और सॉल्व होता नहीं दिख रहा, मुझे ये बनाना है। अब ये बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, पर वो बड़ा ही आसान लॉजिक है, जिस तरह से मैं आपको भी बताऊंगा। देखो आपको ए और बी वाली टर्म एक साइड पे चाहिए और एक कोई भी बाकी की टर्म दूसरी साइड पे चाहिए, तो ए और बी वाली दो टर्म्स है, ये री और ये री, इन दोनों को यहीं पे लिखिए, और जो बची हुई टर्म है एच के उसको अदर साइड पे ले जाओ, अदर साइड पे चली गई। अब सामने वाली साइड पे आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1। अब इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसको 1 बनाना है तो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय एच के कर दो, पूरी इक्वेशन को एच के से डिवाइड कर दीजिए, ए के को एच के से डिवाइड कर दो, एच बी को एच के से डिवाइड कर दो, और एच के को एच के से डिवाइड कर दो। ये कट के 1 आ जाएगा, यहां पे के से के कटेगा, यहां पे एच से एच कटेगा, तो बचा ए बाय एच प्लस बी बाय के इक्वल्स टू 1, और यही हमें प्रूव करना है। तो ये आप देख सकते हो काफी आसानी से प्रूव हो गया, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ा है बस, ठीक है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे स्लोप का एक तीसरा फॉर्मूला भी बताया था, वो अभी तक यूज नहीं हुआ। देखिए वो इस एक्सरसाइज में काम नहीं आएगा, वो एक्चुअल में डिराइव्ड फॉर्मूला है, जो थर्ड एक्सरसाइज ऑनवर्ड्स आपके काम आने वाला है, उससे पहले काम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, चलिए मूव करते हैं इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको ये फिगर एक दे रखी है जिसमें आपको पॉपुलेशन और ईयर का एक ग्राफ दे रखा है किसी कंट्री का, पता नहीं कहां का होगा। पॉपुलेशन जो है ये करोड़ में है और यहां पे ईयर है, ये 1985 में 92, इसका मतलब ईयर 1985 में पॉपुलेशन जो थी वो 92 करोड़ थी, ठीक है। 1995 में 97 करोड़। तो ये ए और बी दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ग्राफ के अंदर ही। आपसे पूछा है स्लोप ऑफ ए बी एंड पॉपुलेशन इन 2010। ओके, तो पहले तो हम एक काम करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा, स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये ऊपर 5 आएगा, नीचे 10 आएगा, तो स्लोप आ गई 1/2। तो स्लोप ऑफ ए बी जो है 1/2 है, ठीक है। अब आपसे पूछा पॉपुलेशन इन 2010 क्या होगी, बेटा इसी तरह अगर हम चलते रहे तो एक पॉइंट आएगा सी जिसमें 2010 के साथ पॉपुलेशन कुछ निकालनी है हमें कि कितनी होगी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, लेट पॉपुलेशन इन 2010 बी y, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसको मैंने y मान लिया, अब ये y निकाल लेना है। अब y कैसे निकालेंगे, बेटा ये तीनों पॉइंट कोलिनियर ही है ना, तो कोलिनियरिटी की कंडीशन लगा लो, दैट्स इट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो नाउ ए बी सी आर कोलिनियर, तो अगर ये कोलिनियर है तो ऐसे में स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी हमने ऑलरेडी निकाल ली है, विच इज 1/2। बीसी की स्लोप मैं निकाल सकता हूं y2 माइनस y1 यानी y माइनस 97 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 2010 माइनस 1995।
ठीक है, तो इससे निकाल लेते हैं। ये 1/2, सामने तो y ही रहेगा, y माइनस 97 और नीचे आ गया 15। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां बनेगा 15, ये आ जाएगा 2y और ये मल्टीप्लाई हो गया 194, राइट। अब ये इधर आके ऐड हो जाएगा, 2y की वैल्यू आ जाएगी 209, तो y आ जाएगा 104.5। सो देयरफॉर इससे हमें ये पता चल गया कि पॉपुलेशन इन 2010 इज या फिर विल बी 104.5 करोड़। वैसे विल भी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भी वॉज ही आना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, अभी ईयर 2010 कोई भी कंट्री हो चाहे। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में किए हुए सारे क्वेश्चन और ये जो स्लोप का कंसेप्ट है ये आपको अच्छे से माइंड में फिट हो गया होगा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास से हमें एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करना है इसी चैप्टर का ही, विच इज इक्वेशन ऑफ लाइन। आपने आज तक इक्वेशन ऑफ लाइन सिर्फ देखी है, ठीक है, पर वो बनती कैसे है वो अब आप सीखने वाले हैं। आपने वैसे इक्वेशन बना रखी है वर्ड प्रॉब्लम की हेल्प से, बट वो तो कुछ सिचुएशन दे रखी होती थी, उसी के अकॉर्डिंग करते थे। अब हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन पढ़ने वाले हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।